Hello students, the next topic is surface area of a sphere, and on the basis of this article today we will do NCERT exercise 13.4. So let us take what is the sphere. So one sketch I am drawing here. Let us suppose this one is any solid ball. What is this? Let us suppose this is any solid ball whose center is this, and from center to this surface the distance, let us suppose r, then this r is known as the radius of the sphere. In daily life, we have, let us suppose we have seen the cricket ball. This is the best example of a sphere. So, here what is the surface area of a sphere? So, for example, if we have a cricket ball which is a solid, and let us suppose its central part is this, and from distance of this central part to the surface, if we take any point on the surface, then this OA is equals to radii of a sphere. तो स्फेयर का रेडियस क्या है कि जो भी आपके पास सॉलिड स्फेयर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्रिकेट बॉल का, होलो स्फेयर भी हो सकता है अगर वो अंदर से टोटल खोखला हो, तो we can say such sphere is hollow sphere, but in the example of cricket ball, the outer surface is spherical, and if we have to find the total area of outer surface, for example, if we have to color a cricket ball on the surface, then how much area will be colored? That will be equal to the surface area of a sphere. So, to find the surface area of a sphere, as you know, sphere is a three-dimensional figure. So, let us suppose radius of any sphere is the r. Then, first of all, the surface area of a sphere is given by 4 pi r square unit square. This is the formula for the surface area of a sphere. If any sphere is given, let us suppose this is the any given sphere, and if this sphere is cut into part along its diameter, then the upper part, this one is known as the hemisphere first, and this horizontal line traced part is second hemisphere. So when a sphere is cut in two equal part and separated, let us suppose अगर हम इसको काट करके यहाँ से separate कर देते हैं, then you will see one hemisphere is this, another hemisphere is this, और अगर इन दोनों को मैं combine कर देता हूँ, तो again you will get one sphere. So second part, what is the area of a hemisphere? So let us suppose this is the hemisphere, then its curved surface area means outer surface area. So the curved surface area, the curved surface area of a hemisphere is equals to 2 pi r square, because total is 4 pi r square. So if we divide 4 pi r square by 2, then 2 2s are 4. So 2 pi r square unit square will be the unit square means, let us for radius is centimeter, then area will be centimeter square. If radius is in meter, then area will be meter square. That's why I am writing here unit square. So the curved surface area of a sphere is 2 pi r square, and hemisphere is generally if a given sphere is divided into
part, then each part is known as a hemisphere, and the outer means this one. कुछ बच्चों को देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब हम स्फेयर के दो पार्ट कर लेंगे तो हेमिस्फेयर का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, लेट अस सपोज, जैसे मैं ये कह रहा, ये तो सर्कुलर ही दिख रहा है इसमें, ठीक है, तो इसको अभी हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि लेट अस सपोज इफ a sphere is divided into equal part, let us suppose this is the hemisphere, then this one is the outer surface from, let us suppose this is the point A, this is the point B, and this is the O center. Then O2A is radius and O2B is also radius because AOB is the diameter of hemisphere. So A2, let us suppose here any point P, then APB, this is called outer surface, and this outer surface area is termed as the card surface area of the hemisphere. But in any hemisphere, let us suppose आपने जैसे क्रिकेट की बॉल है और उसको सेंट्रल से दो पार्ट कर दिए और उसको जैसे अपने हाथ में लेकर के अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो उसका डाउन वाला पार्ट होगा, जहां से कट वाले पार्ट को अपन अपर साइड में रख करके अगर ऑब्जर्व करें तो उसका जो टॉप है दैट विल बी सर्कुलर, एक सर्कुलर होगा। जैसे आपके हेमिस्फेयर का जैसे कोई बाउल अपने पास है तो बाउल का जो अबव पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर, एंड वी आर टॉकिंग हियर कि स्फेयर इज सॉलिड इट इज नॉट होलो, देन अपर पार्ट विल बी सर्कुलर, so its area will be pi r square, and this outer surface that is called curved surface, its area will be 2 pi r square. So third, the total surface area of a hemisphere, कि हेमिस्फेयर का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना तो ये किसके बराबर होगा, CSA कार्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट मतलब जैसे अपन ने कोई बाउल लिया जो स्फेरिकल फॉर्म में है, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि क्रिकेट की बॉल के अगर आप दो पार्ट कर लेते हैं और बॉल अगर सॉलिड है तो आउटर सरफेस कर्व्ड सरफेस होगा, उसका टॉप जो है वो सर्कुलर होगा, तो दैट इज सर्कुलर पार्ट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सो हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस होगा, सी 2 पाई आर स्क्वायर एंड 1 पाई आर स्क्वायर, इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सो दीज आर द थ्री basic formula. On the basis of this formula we will do exercise 13.4. So once again revise कर ले, the surface area और total surface area एक ही बात है, 4 pi r square of a sphere. Then curved surface area means sphere is divided in two parts, so each part will be known as the hemisphere. Hemisphere का जो curved surface है, वर्ड टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हेमिस्फेयर में हमें आउटर सरफेस निकालना है तो इट विल बी नोन एज कर्व्ड सरफेस, और इसका एरिया होगा टोटल का हाफ, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर का 2 पाई r स्क्वायर। और अगर हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हेमिस्फेयर का जो आउटर पार्ट होगा दैट विल बी कर्व्ड सरफेस 2 पाई r स्क्वायर, और इसका टॉप क्या होता है, सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, सो टोटल हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर यूनिट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला वी विल डू द एक्सरसाइज। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। Now see क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करें फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ a sphere whose radius। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.4 पहला क्वेश्चन, उसके तीन पार्ट है। पहला पार्ट की फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, एक ऐसे स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस कितना दे रखा आपको
10.5 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज ये कोई स्क्वायर है फर्स्ट पार्ट में। अभी देखिए आपको सर्कल टाइप दिख रहा है, अपन इसको 3D में पेपर प्लेन पे ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। और एग्जांपल मान के चलिए कि कोई बॉल है जिसकी सेंटर से लेकर के आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है that is 10.5 centimeter. So what is given? Radii of sphere that is r और वो कितना दे रखा 10.5 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया कितना होता है जिसको अपन टीएसए भी लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ सेंटीमीटर है तो अपन सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करिए 4 into 22/7 into r स्क्वायर मींस 10.5 into 10.5। यहाँ से डेस पॉइंट हटाए 1 के बाद एक 0 डिनोमिनेटर में, यहाँ से भी पॉइंट हटाए एक 0। अब देखिए 7 की टेबल से ये कितनी बार कट जाएगा 15 टाइम। ओके, आप 15 को क्या करेंगे अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 into 22 into 105 अपॉन कितना था बेटे, अपॉन नीचे 10 into 10 तो यहाँ 10 into 10 का मतलब 100 हो गया। एक 0 से एक 0 कट गया। ये 5 से कितना बार कट जाएगा 21 टाइम। ये 5 से कितने बार कट जाएगा 2 बार। ये 2 से यहाँ पर 22 कितने बार कट जाएगा 11 बार। सो फाइनली क्या बचा 11 into 6 that is 66 into 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 66 into 21 that is the total surface area of a sphere. Pause the video now. So similarly question number 2 क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में एक दूसरा स्फीयर है। देखिए फॉर्मूला यही है, मेनली आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, स्फीयर है कोई जिसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, रेडियस इज गिवन 5.6 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज O is the central part and A is any point on the sphere or sphere surface of the sphere, then radius किसके बराबर है 5.6 सेंटीमीटर। नाउ T ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, किसी भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। यूनिट कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ अपन सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। फिर से 4 into पाई की वैल्यू 22/7 into आर स्क्वायर का मतलब 5.6 into 5.6। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 के बाद एक 0, यहाँ से भी एक 0। ये 7 से 56 8 बार कट जाएगा। ठीक है, नाउ इसको क्या करेंगे 8 4 जा 32 into 22 into 56 डिवाइडेड बाय 100। तो 32 को 22 से मल्टीप्लाई करना, फिर 56 से, और लास्ट में क्या करना जो भी डिजिट आ रहा है उसका राइट हैंड साइड से अपन क्या करेंगे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में 32 into 22 into 56 तो ये 394 मींस 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 100 होगा। तो इसको क्या करेंगे डिनोमिनेटर 2 0, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट 1 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें तो फाइनली आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। पॉज द वीडियो नोट डाउन। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, we have to find the area of a sphere whose radius is, again ये केवल आपको प्रैक्टिस है कि थर्ड स्फीयर है, स्फीयर को थोड़ा सा स्फीयर जैसा बनाए। एनी स्फीयर लेट अस सपोज सेंटर O, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सर्कल नहीं है। पेपर प्लेन पे अपन क्या बनाएंगे इसको स्फीयर ही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉल है आपकी, सॉलिड बॉल है जिसका सेंटर ये है, ये कोई पॉइंट है इसके सरफेस के ऊपर। ओके, सो समटाइम कभी-कभी अपन अर्थ को भी क्या मान लेते हैं जस्ट लाइक ए बॉल, बट दैट इज नॉट स्फेरिकल। ठीक है, वो एलिप्टिकल है, इसलिए अपन अर्थ का एग्जांपल कभी भी स्फीयर में नहीं देते हैं।
सो रेडियस कितना दे रखा है बेटे, रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना, अगेन टीए से, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर will be equals to 4 pi r square unit square. So 4 into pi 22/7 r square 14 into 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 7 से 14 2 बार कट जाएगा, फिर तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना 2 को 4 से 8, 2 4 जा 8, 8 into 22 into 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत इजी है, 8 into 22 into 14 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आ जाएगा। सो सिंपली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ओवर। केवल रेडियस दे रखा था, सिंपल आपको फॉर्मूला 4 pi r square याद होना चाहिए एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, question number second is assume pi is 22/7 unless stated otherwise। जब तक आपको क्वेश्चन में अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं दी जाए तब तक पाई की वैल्यू आप 22/7 ही यूज लेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर whose diameter is given। देखिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक स्फीयर है, लेट अस पुट दिस वन इज द गिवन स्फीयर और इस स्फीयर का डायमीटर दे रखा है। डायमीटर का मतलब सेंटर ये है, सरफेस पे 2 पॉइंट है ए और बी जो कहां से निकल रहे हैं, सेंटर से। तो दिस लाइन इज नोन एज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। जब डायमीटर दे रखा होगा तो अपन क्या करेंगे बेटे, हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी, बिकॉज ओ से बी या ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। अपने को गिवन है ये फर्स्ट पार्ट में कितना दे रखा, 14 सेंटीमीटर आपका डायमीटर। तो क्या लिखा, द डायमीटर ऑफ स्फीयर that is d is equals to कितना है, 14 सेंटीमीटर। implies that रेडियस कितनी हो जाएगी बेटे, रेडियस को r से लिखते हैं 14/2 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। फिर अपने को क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया। सो नाउ TSA स्टैंड फॉर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, T स्टैंड फॉर टोटल, S स्टैंड फॉर सरफेस, A स्टैंड फॉर एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर कितना होगा, 4 pi r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। आप देखिए 4 into 22/7 into 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 क्यों है, क्योंकि डायमीटर आपका 14 था, डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा। सो देखिए यहाँ 7 से 7 सीधा कैंसिल आउट हो रहा। नाउ दिस 4 into 7 28 into 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 28 को 22 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। पॉज द वीडियो नोटा। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड, अगेन गिवन स्फीयर में डायमीटर उसने चेंज कर दिया इस बार, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। डायमीटर कितना कर दिया, लेट अस सपोज स्फीयर है जिसमें डायमीटर आपका कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। आप देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, केवल मैं यहां बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें स्फीयर का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। सो द diameter d of a sphere is equals to कितना दे रखा है बेटे, ये दे रखा 21 सेंटीमीटर। तो implies that रेडियस कितनी होगी बेटे, रेडियस r will be equals to d/2। बहुत बेसिक है, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते हैं, है ना। डायमीटर by 2 रेडियस, तो 21/2 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। implies that TSA of total surface area of a sphere कितना होगा,
4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। देखो ये अपने फर्स्ट में किया था, पॉइंट हटाया 1 0, एक पॉइंट हटाया 0, ये कितने बार कट गया था 15 बार। और नेक्स्ट स्टेप में 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 60 इंटू 22 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 2 जा 10 और ये 21 2 जा 21, 5 जा 105। ये 2 भी अपना किससे कट गया था, 11 बार कट गया था। तो आपका बचा कितना था, 11 इंटू 6 दैट इज 66 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका आपको फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या सॉल्व किया था, एरिया आ रहा था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 9th में भी आपके सिलेबस में है और ये आपको 10th में भी यूज आएगी। सो बहुत सावधानी से क्वेश्चन सॉल्व करें। और जब भी सरफेस एरिया निकालना हो स्फीयर का तो ओनली कैलकुलेशन गेम है, नथिंग, वेरी सिंपल। सो अपन ने सेकंड पार्ट कर लिया बेटे, थर्ड पार्ट है अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। लेट अस सपोज दिस वन इज द स्फीयर और इसका डायमीटर दे रखा है आपने को 3.5, डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, लेट अस सपोज ओ सेंटर है तो AO भी रेडियस होगी और OB भी रेडियस होगी। सो क्या गिवन है, गिवन द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, किसी स्फीयर का डायमीटर D बराबर कितना दे रखा है बेटे, 3.5 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस विल बी रेडियस R बराबर D/2 दैट इज 3.5 अपॉन 2। ओके, अपन इसको इसी में रख दे, पॉइंट हटा देते हैं 0। एक प्रकार से 35 अपॉन 20 का मतलब कितना हो गया, 7 5 जा 35 एंड 5 4 जा 20, तो ये हो गया 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। ओके, अपन इसी को रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहेगा। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना होता है बेटे, 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, नहीं चीज, 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो 4 पाई का मतलब 4 इंटू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7/4 इंटू 7/4। देखिए अपन यहाँ मैंने कहा ना आपको इसको रेशनल फॉर्म में ही रखे, क्योंकि देखो 4 से सीधा 4 कट जाएगा, 7 से सीधा 7 कट जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22। अब 11 को सीधो मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, 38.5। सो एरिया विल बी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज 77/2। वेरी सिंपल, क्लास 5th का। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। So this was question number second, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया बेटे, चलो जो बच्चे ऑनलाइन है पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question third is find the total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजेज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट अस सपोज वी हैव गिवन एनी हेमिस्फीयर, दिस इज द हेमिस्फीयर। और क्या कर रखा, इस हेमिस्फीयर का अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना। मैंने आपको फॉर्मूला जब बताया था मैंने कहा था कि लेट अस सपोज ये AOB इसका डायमीटर है,
then A2 in this way, this will be the curved surface area of हेमिस्फीयर, जिसको लिखते हैं अपन 2 पाई r स्क्वायर। और टॉप क्या है बेटे, ये लाइन बार सर्कुलर है, दैट इज पाई r स्क्वायर। और अपने को रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहां से r बराबर 10 सेंटीमीटर, O से लेकर के B तक का डिस्टेंस। सो गिवन the radii of हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, r बराबर 10 सेंटीमीटर है। और अपने को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ a hemisphere will be equals to 3 pi r square। कैसे बेटा है ये, 2 pi r square कर्व सरफेस है और सर्कुलर पार्ट का पाई r स्क्वायर, तो 3 pi r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये मैंने डेरिवेशन में बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, 3 pi r स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट अप करिए, 3 into 22/7 into r कितना है बेटे 10, तो 10 into 10 आप देखिए 22 3 जा 66 into कितना है 100, तो 00/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू कैन डिवाइड दिस ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटे, ये यहां पर आपको क्या कह रहा है बेटे कि यूज 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो देखो ये तरीका है जिसमें अपन देखो पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप कर दे तो, और अगर मुझे वैसे 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल तक 3.14 ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 यूज लेना है। तो कोई बात नहीं, 3 into 3.14 into 10 into 10, ओके 100। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना 3 से, तो 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 1 जा 3 3 एंड 1 4 और 3 3 जा 9, 2 पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगाया। आप देखो इनटू 100 हो रहा है, तो ये क्या जब 1 के बाद 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप देखिए मैंने दोनों तरीके से करा दिया। अगर क्वेश्चन में यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 नहीं दे रखा है तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लिखेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना कि अदरवाइज नॉट स्टेटेड, तब तक आप पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। लेकिन अगर पाई की वैल्यू 22/7 आपको नहीं लेना है तो क्वेश्चन में जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो हमने यूज ले लिया, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा, वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, ओके। डेसिमल में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, अदरवाइज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। सो ऑल द वीडियो इज नॉट आउट। सो आज हम बेटे इसी क्वेश्चन तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड करेंगे। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगले वीडियो में।